Good morning. This is Dr. Amita Jain from Mahesh Tutorials. And with me, I have Professor Dr. Litin Labhane, Professor and Dean at R.T. Bhavans College, Andheri West. Welcome, sir. Thank you, ma'am. Thank you for your valuable time. Dear parents, it is so beautiful that we have a researcher who represents India at the European Botanical Research Centre. And what makes him special, I'm going to let him talk about that speciality. Yes, sir. Good morning, everyone. Thank you, madam, for giving me the opportunity to be here with you all and to help the parents as well as students. I had been through the phase where I was a student, then I worked hard as a student. I qualified my NET, followed by SAFE, then GATE, then GRE, then TOEFL. Wow. I did my PhD, and then finally I did my postdoctoral research from Hungary Academy of Sciences from Szeged, where the Biological Research Center is there, and that center is a European Center for Excellence. So every once or twice in a year I go there and do my research during my vacations so that I can update myself. If I can update myself, then the knowledge which I learned from that place, I can give it back to my student, my country, my society. Thank you. That's short of mine. Wow. So parents, don't you think this is so mind-boggling? Because I'm sure when he was growing up, his parents played a major role in this. So let's listen from him that how a stress-free structure or environment a parent can give to their student. Yeah, the very important parents, whatever I'm today, there are two major people are there, major communities I would say. Right? One is my parent, and the second one are my teachers. Because of these two people only, I think I'm sitting on this platform and I'm addressing you because of this issue. I will give you a small example. Whenever I was in school, my father used to wake me up at 4 o'clock in the morning. And it always happened with everyone that once you are up, being a student, you always want to be in the bed. But then my father, he used to see to that he was knowing it that what are the shortcomings of a kid. So then I should not sleep. Therefore, what he used to do is to take up some book and used to keep reading. And then, since I used to see my father reading out there, and I can know that my father is giving a watch on me, that I am not going to bed. So I started to develop a habit. So developing a habit, we might have learned, seen through various books, and the atomic habit is just been released some years back. But I'm talking of something which is 30 years back. Right. My father used to be there from 4 o'clock. And then I used to study. So that is how every day I used to get at 4 o'clock, and 4 to 7 I used to study 3 hours of study every day without fail. And that is how my parents supported me. Going back ahead, and my teachers in my college, they used to be very supportive, very frank. The teachers has a very big role to play. Not all students are equal, but then we need to keep an eye that the students are the backbone of the society. So teacher, all students are good. There is no good student, there is no bad student. All students are good. The teacher needs to be impartial. He needs to keep a pat on the student's shoulder and say, yes, आप कर सकते हो. वो जो confidence है मेरे teacher. See, today also I will tell you, I am talking to you after I finished my graduation 25 years back. But whenever I am saying it, I am getting nostalgic. I can still feel the hand of my warmth of my teacher still on my back. That happened 30 years back. So there lies the strength of my teachers and my parents. जी बिल्कुल बिल्कुल. एंड सर ये बहुत ही ब्यूटीफुल आपने एक बात बोली कि मेरे पापा भी मेरे साथ पढ़ने लगते थे. तो मुझे बताइए उस टाइम पे क्या उनको भी ऐसे ही स्ट्रेस लगता था कि मेरे बेटे का नीट का एग्जाम है या आपने नीट भी किया और उसके बाद गेट भी किया, जो कि आज की तारीख में जब मैं बच्चों को बोलती हूँ तो गेट नहीं गेट नो वी डोंट वांट टू गो टू गेट, तो तब क्या
प्रतिक्रिया थी उनकी जो आप हमारे दर्शकों को, हमारे आज की जनरेशन के पेरेंट्स को बताना चाहो? The net exam, what you asked me, percent exam, I will tell you the level of difficulty. When we appeared for net examination, the passing percentage was 0.1 to 0.3. अब इसका मतलब क्या है, अगर अपन सिंपल टर्म्स में बात करते हैं तो 1000 बच्चे बैठेंगे तो उसमें से एक बच्चा पास हो जाएगा, इतना सिंपल इक्वेशन है। आज वो अपन 100 में से 3 लोग पास हो, जो पासिंग परसेंटेज नेट नहीं सेट नहीं किया है वो 3%, 1 से 3% के बीच में किया है। So see, we were there 10 times harder kind of a thing. But I will tell you that कि parents का backing वो एटॉमिक हैबिट बोलते हैं ना, मैंने इसका नहीं किया था कि मुझे बचपन से ही ये किया है। इसका मतलब ये कि अगर अभी तक यहाँ से हमारे पेरेंट्स ने नहीं किया है तो अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ऐसा भी नहीं करा। जिस दिन आप जाग जाओ उस दिन सवेरा मैं इस बात को मानने वाला हूँ। If the student has realized that okay, he has to work hard, because see, you have to work for yourself. Nobody is going to work for you. मैं घोड़े को पानी के तरह तो ले जाऊंगा, लेकिन पानी तो घोड़े को ही पीना पड़ेगा। ये अगर बंदा समझ जाए तो पेरेंट्स को बस उसके पीछे खड़ा रहना है। भैया तू कर रहा है, जैसे मैंने बोला नेट के लिए मैं प्रिपेयर था, ऐसे मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो पढ़ाई कंसिस्टेंटली चल रही थी, फॉर्म आया, मैंने भर दिया, हमने पढ़ाई की, जाके एग्जाम दे के आके पास हो गए, तो जो प्रेशर था ना वो प्रेशर मुझे फील नहीं हुआ। आज के शायद बच्चों में अपना जो पीयर प्रेशर है बहुत ज़्यादा आ गया है। जी जी। सो द एडवाइस टू द किड्स एंड द पेरेंट्स इज दैट कि आपको क्या करना है वो गोल एस्टैब्लिश कीजिए, सेट अ गोल एंड वर्क टुवर्ड्स इट कंसिस्टेंटली। दैट इज द की। अगर आप गोल सेट कर दिया उसके पीछे मैं अगर मेहनत नहीं करूंगा तो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू अचीव अ गोल। देयर माइट बी पीपल अपन कहते हैं उसने कुछ पढ़ाई नहीं किया फिर भी वो गेट हो गया, ऐसा नहीं है, ये फ्लूक नहीं है। वो उसका कहीं भी आज आपको दिख रहा है, आपके सामने जब स्कूल में आ रहा है तो मस्ती कर रहा है, मजाक कर रहा है, कि इसमें वो तो बच्चा मैंने उसको कुछ आता नहीं है, उसको पढ़ाई नहीं कर रहा है, बट वी डोंट नो व्हाट एवर इमेज दैट वी सी ऑफ अ स्टूडेंट his peer, he is seeing only during the school time. You don't know, after going home he might be like me who might be studying and doing his studies which other people are not able to visualize. Right. तो मुझे लगता है पेरेंट्स ने बच्चों के पीछे खड़े रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर आजकल और एक चीज़ बहुत हो रही है कि जैसे हम देखते हैं कि IIT JEE के बच्चे सुसाइड केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं उनको बहुत प्रेशराइज कर देते हैं और आई एम वेरी हैप्पी कि महेश रूरल कभी भी ये चीज़ के अंदर नहीं जाता है और हम बच्चों को अपने पेस पे पढ़ने की फुल कंफर्ट देते हैं। लेकिन आई थिंक ये एक बहुत आज के डेट में एक फैक्टर हो रहा है कि जहाँ पेरेंट्स प्रेशराइज दे रहे हैं बिकॉज दे आर पेइंग हाई फीस, तो उसके बारे में आपकी एक्सपर्ट एक्सपीरियंस से आप क्या हमको बताना चाहोगे? That's a really bubbling kind of a thing. मैंने जब देखता हूँ कि एक some student is preparing for IIT और JEE और नीट के लिए कर रहे हैं और प्रेशर में उसने भी जान दी थी। बहुत बार इसका अगर अपना अनुमान लगाते हैं तो अपना पता चलता है कि कहीं तो भी एक पीयर प्रेशर है और दूसरा पेरेंट्स का प्रेशर है। पेरेंट्स के लिए मैं बोलना चाहूँगा, चीज अपनी जब खो जाती है तो उस पर रोने से कोई मतलब नहीं है। जो वी नीड टू वैल्यू द थिंग्स व्हेन दे आर विद अस। पेरेंट्स को ये समझना चाहिए अगर वो नीट नहीं हो पाया, लेकिन नीट नहीं होना चाहिए, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये समझना चाहिए अपन लोगों को। देखो मैंने भी नीट दी है, नहीं हो पाया, लेकिन then I went for my BSc. Even after doing my BSc, then MSc and PhD, still I had become one of the another person in India who has done his all these exams cleared and I made a name for myself. मेरी जिंदगी की रुकी नहीं है। That is what I am trying to tell the parents कि आपके लिए सबसे अपने से लिए सबसे इम्पोर्टेंट जिंदगी, मेरी जिंदगी और या किसी और की जिंदगी, ये बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए। बच्चों को ये सोचना चाहिए
कि मेरे पेरेंट्स के लिए स्टेक है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको लाइटली लेना चाहिए, राइट? स्ट्रेस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज स्ट्रेस वही चीज है जो आपको अपने लिमिट से ज्यादा आगे काम कराने में मदद करता है। अगर वो स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रहा हो, ऐसा कोई लाइफ नहीं है, वो कहीं नहीं जा पाएगा। लेकिन जैसे अपने यहाँ पे बहुत सारे फिलोसोफर्स होते हैं, कृष्णा, बुद्ध है, उन्होंने बोला कि आपको जो करना है, पॉइजन, किसी ने पूछा कि पॉइजन क्या है, तो बुद्ध ने कहा कि एनीथिंग दैट इज अबव एक्सेस ऑफ पॉइजन। तो मुझे लगता है अपने को लिमिट ये कर देना पड़ता है, सोचना पड़ेगा कि अपने को क्या नहीं करना है। दूसरे पेरेंट्स से भी ये सोचना चाहिए मेरे लिए मेरा बच्चा इंपॉर्टेंट है या उसका नीड पास होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर कुछ गलत हो जाता है मेरे बच्चे के साथ में, नीड वो बहुत बार दे पाएगा लेकिन मेरा बच्चा नहीं रह पाएगा। ये मुझे समझना चाहिए कि value of life is much more important than need JEE obviously, and I think Mahesh Tutorial is doing a wonderful job that they are not making a stress कि नहीं ये होना ही चाहिए। अपन कोशिश कर रहे हैं, नहीं होता है तो then there are too many avenues are there to make a living on। जी, correct, then I should commentate on Mahesh। थैंक यू सो मच। और एक इसमें कभी कभी ये भी एक आती है डिस्कशन में पॉइंट कि हम बच्चों की काउंसलिंग में बहुत ध्यान देते हैं लेकिन पेरेंट्स की काउंसलिंग का क्या? और इसी श्रृंखला को ध्यान रखते हुए हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि पेरेंट्स मतलब एक हमने गिवन ले लिया है कि मुझे आती है पेरेंटिंग, लेकिन क्या मैं गुड पेरेंट हूँ, बैड पेरेंट हूँ, उस कैटेगरी से बियॉन्ड क्या मुझे पेरेंटिंग आती है? क्या मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ? क्यों? इसके पीछे का एक मैं छोटा सा इंसिडेंट सुनूंगी कि पेरेंट्स को एक फियर अपने बच्चे में डाले, तुमसे तो होएगा ही नहीं, तुम क्या कर रहे हो? कंपैरिजन इंडियन सोसाइटी, इसके बारे में आपने कभी नहीं फेस किया था बचपन से अभी तक? या इसका तोड़ क्या है? मुझे लगता है एक आई थिंक विद मनी कमिंग, बहुत पैसा आ गया है उनके पास में, लेकिन सभी लोगों के पास में नहीं आई, ये भी एक है। लेकिन आज पेरेंट्स लोगों का ये कहना हो गया है कि भैया मैंने मेरे बच्चों को ट्यूशन दे दी है, वर्ल्ड की बेस्ट ट्यूशन में उसको दे रहा हूँ, 5 लाख रुपए उसका फीस है, उसको दे रहा हूँ, अभी मेरा जॉब खत्म हो गया है। हाँ बेटे, द जॉब ऑफ द टीचर, मैंने अपने बच्चों को स्कूल में भेज दिया है, अब नाउ इट इज द जॉब ऑफ द टीचर्स ओनली, उनको गाइड करना है। ऐसा नहीं चलेगा। सी यू कांट शेल अपना क्या बोलते हैं बोझा अपन किसी और पर डाल के अपन अपना जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते। पेरेंट्स विल हैव टू डू देयर वर्क, उनको अपने बच्चों पे घर पे काम करना पड़ेगा। अब ये नहीं बोल सकते अच्छे स्कूल में डाला इसलिए ये अच्छे ट्यूशन लगा दिए इसलिए वो ट्यूशन वाले जिम्मेदार, ऐसा नहीं। ईच ऑफ देम विल हैव टू प्ले अ रोल इन इट, राइट, करेक्ट। पेरेंट्स को घर पे करना पड़ेगा, राइट, टीचर्स को स्कूल में करना पड़ेगा। जी, अगर ट्यूशन जाते हैं उसको एक्स्ट्रा ट्यूटोरियल्स लग रहे हैं, बाकी ट्यूशंस का भी काम हो जाए। जी। बोलने का तात्पर्य ये है कि अपने यहाँ पे जिम्मेदारी लेने से अपन running away from taking that behavior. I own it. वो ये हो रहा है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा करेंगे तो नहीं चलेगा। जब तक अपन ऑन नहीं करेंगे, मेरा बच्चा है, ये मेरा स्टूडेंट है और मुझे करना है, तो अपने इसको आगे लेके करना है। ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिसर्च कुछ हो रही है, वो हो रही है पेरेंटिंग वर्ल्ड में, और अपन उस चीज से अपन दूर भाग रहे हैं। जैसे अपन, मैंने बोला मेरे पेरेंट्स 4 बजे उठ के मेरे लिए बैठते, मेरे बाजू में बैठते, इससे जब मैं यहाँ पे पहुंचा। अच्छे मैं मेरे बेटी के लिए मैं सवेरे उठ के रोज उसके साथ में बैठता। क्या हम करते हैं, क्या हम हमारे बच्चों को उतना टाइम देते हैं क्या? हमारे पेरेंट्स बोलते कि नहीं, मैं दिन में मैं काम करना चाहता हूँ, मैं पैसे कमाता हूँ, मेरा 12 बजे आ गया, 1 बजे, ठीक है पैसा कमा रहे हैं, बहुत जरूरी चीज़ है, लेकिन आप पैसे किसके लिए कमा रहे हैं? यू आर अर्निंग इट फॉर यूर जनरेशन, और आपके बच्चों के लिए कर रहे हैं। लेकिन वो बच्चे अगर आपके साथ में नहीं रहेंगे, अगर उनको कुछ हो जाए तो आप कैसे करेंगे? वो पैसा खा जाएगा। तो अपने को ये देखना आप किसको ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो, मनी को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो या फिर अपने बच्चों के लिए ज़्यादा ध्यान दे रहे हो।
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये बहुत ही एक वैल्यूबल पॉइंट सर ने रखा है। और इसी बात में मुझे एक छोटा सा और इंसिडेंट याद आ रहा है कि मेरे मम्मा भी अगर मैं रात को, तो मेरा बहुत डिफरेंट पैटर्न था। जब तक मैं 10th दे रही थी, मैं सुबह जल्दी उठती थी। दादाजी दादी जी उठते थे 3:30 बजे, तो मैं भी तब उनके साथ उठ के पढ़ती थी। लेकिन जैसे वो असमय हो गए और मेरा उल्टा पैटर्न हो गया, क्योंकि सुबह कॉलेज जाना होता था, तो मैं रात तक लेट पढ़ती थी। और कभी कभी ऐसे होता था कि 1 या 2 घंटे में सिर्फ सोती थी और बसे से आना होता था, तो मुझे रेडी होना था। तो मैं मतलब मम्मा 2 बार चक्कर मार के देखते थे, कॉफ़ी पीनी है, चाय पीनी है। चाय नहीं देते थे, दूध पीना है। तो वो एक बहुत केयरिंग लगता था उस टाइम पे। और बहुत टाइम बहुत प्रोजेक्ट्स होते थे, तो वो बैठ के मेरे साथ प्रोजेक्ट्स भी कराते थे। तो आई थिंक इसीलिए जब मैं खुद को भी देखती हूँ कि मैंने बहुत सारे लोग मेरे को पूछते हैं हाउ डिड यू क्लियर सो मेनी डिग्रीज, तो मुझे लगता है कि व्हाई, बिकॉज माय पेरेंट्स एंड देन माय फैमिली, एवरीबॉडी वाज देयर टू सपोर्ट। बट आई थिंक सर अगर जाते जाते हम एक टॉप 3 टिप्स पेरेंट्स को देना चाहेंगे डेली रूटीन बच्चों के साथ कैसे बेहतर करनी, तो वो क्या हो? First thing, have confidence in your child. Yes, thank सबसे you. इम्पोर्टेंट, देखो आपका अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस होना कि मेरा बेटा है और वो करेगा। एग्जाम तो बस पार्ट ऑफ जिंदगी है, बिल्कुल। कभी ज़्यादा आएंगे कभी कम आएंगे, लेकिन उनको तो कारवा आ जाता है। तो यू हैव कॉन्फिडेंस इन योर चाइल्ड। सेकेंड थिंग, स्टैंड बाय योर चाइल्ड, राइट? शायद वो गलत होगा, सीख रहा है, तो एरर इज ह्यूमन डिस्कवरी। गलतियां होगी और छोटा है ना, सीख रहा है, गलतियां उससे होगी, बच्चों से गलतियां होगी। और वो गलतियां होने के बाद में आप उसको समझाइए कि ये चीज इस तरीके से नहीं की जाती, देयर आर वेज एंड मींस टू डू इट। और थर्ड थिंग है, अगर उसने अकम्प्लिशमेंट कुछ किया है, छोटी छोटी चीजें है, मैं बताता हूँ, छोटी छोटी चीजें है, कुछ अकम्प्लिश किया है, गिव अ पैट ऑन द बैक। क्योंकि अगर वो जो छोटी चीज, अपने को लगता है कि नहीं, जब वो जेई हो जाएगा, जब वो बहुत बड़ा सक्सेसफुल हो जाएगा, तभी मैं उसके कंधे पे हाथ रखूंगा, मैं उसको पैट करूंगा। ये प्रोसेस का पार्ट है। ये छोटा छोटा जो आपको पैटिंग है, आई थिंक वो दैट विल मैटर अ लॉट। वो सफिशिएंट रहेगा जिंदगी में सफल। थैंक यू। सो पेरेंट्स, मुझे लगता है कि आज का ये जो इंटरेक्शन डॉक्टर लम्हाने के साथ हमने किया, और जो उन्होंने हमारे को इतना टाइम दिया, समय दिया, हम ऐसी सीरीज लेके वापस आएंगे। और हम फुल टीम और मेरे पूरे स्टाफ की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ दैट ही गेव अस, बीइंग अ रिसर्चर, आज संडे का दिन उन्होंने हमें इतना टाइम दिया, डिस्कशंस की, एंड ही हैज बीन गाइडिंग आवर चिल्ड्रन आल्सो हाउ टू गो इन अहेड फॉर रिसर्च एंड ब्रिंग लॉट ऑफ laureates for our country as Bharat. Thank you. Stay tuned, and we are at Mahesh Tutorials, Mora Brand, Lower Oshigara. Thank you. Thank you very much. Thank you for giving me the chance. Wishing Mahesh Tutorial all the best. Thanks.